Jai Hind everyone. Last lecture we have discussed about the most important part in general knowledge, economics and 5-year plan. In this plan, economics 5-year plan. In this plan, we have discussed about the planning. We have discussed about planning commission and importance periods of the plan. We already discussed about the period of the plan, 1951 to 1956, the first 5-year plan, 1956 to 1961, second 5-year plan, 1961 to 1966, third 5-year plan. After that, 1966 to 1969, this is the plan holiday. Next is 1969 to 1974, this is the fourth 5-year plan. 1974 to 1978, this is the fifth 5-year plan, only 4 years. After that, 1978 to 1978 to 1980, this is the duration of the plan holiday. After that, 1980 to 85, sixth 5-year plan. 85 to 90, this is the seventh 5-year plan. 90 to 92, this is the annual plan. 92 to 97, next 5-year plan, this is the eighth 5-year plan. 97 to 2002, this is the ninth 5-year plan. 2002 to 2007, this is the 10th 5-year plan. After that, 2007 to 2012, this is the next 5-year plan. That means the annual plan, 11 number plan. This plan also known as the Rangarajan plan. And 2012, 2017, this is the last 5-year plan. That's means the 12th 5-year plan. After that, Modi government abolished Planning Commission and established Niti Aayog in India. 1st January 1950. Niti Aayog, that means the National Institution for Transforming India. Okay, so we have already discussed about the period of the plan, and we also started first 5-year plan. तो फर्स्ट 5-year plan हमने स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहेंगे, तो उसके आंसर आपको देना है. थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा, आप पार्टिसिपेट कीजिए, एक्टिव पार्टिसिपेट कीजिए, फिर हम आगे जाएंगे. तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको अनम्यूट करके आंसर देना है, तो हम आगे बढ़ेंगे. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज एस्टैब्लिश्ड प्लानिंग कमीशन? Class, when was established Planning Commission in India? ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये एग्जाम में आने वाले हैं आपके. ये ऑलरेडी क्वेश्चंस मैंने जो आपको नेक्स्ट टेस्ट आप आफ्टरनून में देने वाले हैं, वो ये सारे इंडिया के एग्जाम में या अदर एग्जाम में जो टेक्निकल शॉर्ट कमीशन के एग्जाम उसमें आते हैं. यस निधि, when was established Planning Commission? 15 March 1950. Correct, 15 March 1950. And who is known as father of modern economics? Yes, Anup. Who is known as father of modern economics? Adam Smith. Adam Smith is known as father of modern economics. Okay. And when was started first 5-year plan? 1951. कब start हुआ था? 1951. What is the priority of first 5-year plan? To develop. Yes, Raghuvet. Primary sector. Yes, to develop agriculture, irrigation and power project. That means that to develop primary sector, our basic sector. This is the priority of first 5-year plan. Okay, class. This is the most important question to related recent lecture. Now we have focus on the next 5-year plan. थोड़ा सा डिस्कस करते हैं उस प्लान के बारे में और आगे बढ़ते हैं. ओके, तो हम जाते हैं थोड़ा सा प्रेजेंटेशन की तरफ.
थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिए अच्छे से, इम्पोर्टेंट पार्ट है, हर एक एग्जाम में आता है, एनडीए के तो एग्जाम में आता है, मगर यूपीएससी के एमपीएससी के हर एक एग्जाम में ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो 5 ईयर प्लान हो या इकोनॉमिकल प्लान हो, और आज के डेज में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। रिसेंटली कुछ न्यू पॉलिसी आई, इकोनॉमिकल पॉलिसी आई, तो उससे रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो 5 ईयर प्लान में हमने देखा था, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नियर बाय 9 to 10 पॉइंट्स टू रिलेटेड 5 ईयर प्लान। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लान नंबर, द पीरियड ऑफ द प्लान, थर्ड वन, चेयरमैन ऑफ द प्लान, fourth one, which is the model used in plan, fifth one, priority of the plan. This is the most important thing to related any plan, priority of the plan. Next is 6 number, objective of the plan. 7 number, which is the project launch in related program, related plan. 8 number, programs in the plan. And last number in the most important, achievement of the plan, कि plan की achievement क्या रही, इससे रिलेटेड हमें वो डिस्कशन ध्यान में होना चाहिए। आप रनिंग नोट्स लीजिए, ये सारे मैं आपको पीडीएफ भी सेंड करूंगा ग्रुप पे, तो उसको आप आपके नोटबुक में नोट आउट कर लीजिए। बिकॉज मैंने कहा कि ये जो पार्ट है, ओवरऑल जीके का जो पार्ट है, सेल्फ नोट्स उसको प्रिपेयर करेंगे तभी आपके दिमाग में ये सारी चीजें रहेगी। बिकॉज इसका स्कोप बहुत ज्यादा है, इसमें इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा है, आप थोड़े से शॉर्ट में इंपॉर्टेंट लिख के रखेंगे तो आपके लाइफ टाइम वो काम आएगा। जब तक आपको जॉब नहीं मिलती तब तक ये सारे नोट्स आपको काम आने वाले हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। चलो थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और आगे बढ़ेंगे सेकंड 5 ईयर प्लान के। यहाँ पर दिया है, द कंसेप्ट ऑफ द 5 ईयर प्लान वाज बोरो फ्रॉम विच कंट्री। तो हमें पता है हमने कहाँ से लिए, कौन से कंट्री से लिए क्लास? रशिया। यस करेक्ट, रशिया से हमने ये कंसेप्ट ली है। जो 5 ईयर प्लान है, जो स्टालिन ने वहां पर अप्लाइड की थी और इंडिया ने वो एडॉप्ट की रशिया से। ये क्वेश्चन आया है लास्ट, कोई तो एग्जाम में क्वेश्चन आया है, इसलिए मैंने क्वेश्चन आपको यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो रशिया ने ये स्टार्ट किया था और उसके बाद इंडिया ने अडॉप्ट किया। और हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें हमें पता है कि फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल नंबर 12 to 35 और 36 to 51 जो आर्टिकल्स है, उसको कहा जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी जो आर्टिकल्स है 36 से लेकर 51 में, उसमें से 39 नंबर का जो आर्टिकल है, जो इंफॉर्मेशन देता है टू इस्टेब्लिश प्लानिंग कमीशन इन इंडिया, एंड प्लानिंग कमीशन स्टार्टेड 5 ईयर प्लान इन इंडिया। ये अच्छे से ध्यान में रखिए, ठीक है। तो सम इंपॉर्टेंट डिटेल्स टू रिमेम्बर इसमें दिया है। प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश होता है 15 मार्च टू 1950 में, और उसके अंडर एनडीसी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, वो 6 अगस्त 1952 में इस्टेब्लिश होती है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ वहां पर जो प्रोग्राम्स लॉन्च करने हैं, जैसे मनरेगा आपने सुना होगा, ऐसे अलग अलग, इंदिरा आवास आपने सुना होगा। तो ये अलग अलग जो प्रोग्राम्स लॉन्च होने हैं वो अंडर यहाँ पर लॉन्च होते हैं एनडीसी, ये ध्यान में रखिए। और नीति आयोग के बारे में मैंने अभी अभी आपको कहा कि हमारा जो 12th नंबर का 5 ईयर प्लान है, जिसका ड्यूरेशन था 2012-2070, इसको जो न्यू गवर्नमेंट आई थी, मोदी गवर्नमेंट, इसने अबॉलिश कर दिया प्लानिंग कमीशन को और उसकी जगह पे नीति आयोग आया है। एक अभी बता देता हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग। ये नोट आउट कर लीजिए, ये होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए, ये लास्ट में देने वाला था मगर मैं अभी याद आया इसलिए देता हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग, दोनों में क्या फर्क है, ये मुझे आपको बताना है नेक्स्ट लेक्चर में। वहां से हमारा नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा, ये ध्यान में रखिए, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको बताना है कि क्या डिफरेंस है दोनों में। नेक्स्ट, एम विश्वेश्वरैया को हम नहीं भूल सकते, उन्होंने एक बुक लिखी, कब लिखी? 1934, एक इंपॉर्टेंट डेट है 1934। उन्होंने एक बुक लिखी, प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया। इसमें मैंने जो आपको अभी 9 पॉइंट बताए, वो सारे पॉइंट इसमें इंक्लूड थे। और एम विश्वेश्वरैया इनको वहां पर
इम्पोर्टेंस माना जाता है हमारे फ्यूचर इकोनॉमिकल प्लानिंग से। उनके बुक्स में सारी चीजें वहां पर डिटेलिंग की गई थी, इसलिए हम उनको इम्पोर्टेंस मानते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाएंगे अभी सेकंड 5 ईयर प्लान पे, और एक कुछ क्वेश्चन है, ये लास्ट 5 मिनट्स में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। चलो, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमने डिस्कस किया था। तो उसमें हमने देखा था फर्स्ट 5 ईयर प्लान में कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान का पीरियड था 1951 टू 56। एक शॉर्ट में बताता हूँ, फिर रिवाइज हो जाएगा। पंडित नेहरू जी इज द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान। गुजराल नंदलाल जो गुलजारी लाल नंदा थे, इसके वाइस चेयरमैन थे, और हेरा डोमार का मॉडल यूज किया था। प्रायोरिटी हमने डिस्कस की, उसके साथ साथ कुछ ऑब्जेक्टिव थे, कुछ प्रोजेक्ट्स थे। प्रोजेक्ट्स में इंपॉर्टेंट आपको भाखरा नांगल, दामोदर और हीराकुंड, चित्तरंजन और सिंदरी, ये 5 प्रोजेक्ट्स इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। ऐसे बहुत सारे छोटे वाले प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च हुए थे, बहुत सारे प्रोग्राम्स भी लॉन्च हुए थे, मगर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही हमें फोकस करना है। अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान की अगर नोट्स निकालनी है, उसकी स्टडी करनी है, तो नियर बाय 50 पेज की नोट्स बनेगी अगर डिटेल में जाना है। मगर उसके ऊपर हमें पीएचडी नहीं करना है, हमें एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना है। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये शॉर्ट में ये 9 जो पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। तो प्रोजेक्ट्स में ध्यान में रखेंगे भाखरा नांगल, दामोदर, हीराकुंड जो महानदी उड़ीसा में है, चित्तरंजन एक ट्रांसपोर्ट रिलेटेड या वहां पर रेलवे बुगी से रिलेटेड ये इस्टेब्लिश हुआ था, और सिंदरी जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री थी इंडिया की फर्स्ट। तो ये ध्यान में रखेंगे। और प्रोग्राम्स में हमने देखा था वहां पर आईआईटी सेंटर हुआ, खादी ग्राम उद्योग हुआ, या यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन हुआ है, कॉमन डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसे मैंने अभी अभी आपको कहा। और अचीवमेंट जो थी फर्स्ट 5 ईयर प्लान की, तो वो एक बिगेस्ट अचीवमेंट थी, बिकॉज हम फर्स्ट वहां पर ट्राई कर रहे थे, कुछ न्यूली ट्राई कर रहे थे, और वहां हमें अचीवमेंट हुई। नाउ फोकस ऑन द सेकंड 5 ईयर प्लान। हम देखते हैं इसका जो ड्यूरेशन है, 1 अप्रैल, मैंने जैसे आपको कहा कि इकोनॉमिकल ईयर जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंड होता है, तो इसका ड्यूरेशन रहेगा 1 अप्रैल 1956 टू 31 मार्च 1951। ये ड्यूरेशन रहेगा सेकंड 5 ईयर प्लान का। उसके चेयरमैन हमें पता है, नियर बाय 15 ईयर्स पंडित नेहरू जी हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन तीनों भी प्लान के चेयरमैन पंडित नेहरू ही आपको मिलेंगे। ओके, उसके बाद मॉडल जो यूज हुआ था, महालोबनिस और फ्रीडमैन का मॉडल यूज हुआ था। ऑलरेडी ये मॉडल भी बेस था, महालोबनिस मॉडल मॉडल जो था वो सेकुलर बेस मॉडल था, सेकुलर बेस मॉडल इसको कहा जाता है। और इस महालोबनिस ने जो स्टडी किया था, जैसे मैंने आपको द हिस्ट्री ऑफ इंडियन 5 ईयर प्लान में बताया था कि बॉम्बे प्लान जो ग्रेटेस्ट बिजनेसमैन थे उस टाइम में इंडिया में, जैसे मैंने जमशेदजी टाटा का नाम बताया, बजाज का नाम बताया, या रिलायंस ग्रुप की जो है उनका नाम बताया, तो ये जो थे उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया था इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए। और महालोबनिस ने उसका प्रॉपर स्टडी करके एक मॉडल वहां पर क्रिएट किया। और फ्रीडमैन जो एक फॉरेन इकोनॉमिस्ट थे, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये मॉडल बना, और ये मॉडल मॉडल वहां पर अप्लाइड कर दिया। हमने मॉडल के बारे में भी डिस्कस किया लास्ट लेक्चर में कि एक मॉडल बनाया जाता है। अभी जैसे कि लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं, इसके लिए इस लोकसभा का प्रचार करने के लिए भी अलग अलग मॉडल बनाए जाते हैं, कि एक एजेंसी होती है उसको हायर किया जाता है कि मॉडल कैसे करे, किस तरह वो किसी नेशनल पार्टी के जो ऑब्जेक्टिव है, या आफ्टर 5 ईयर वो कौन सी चीजें कंप्लीट करने वाले हैं, इसका एक मॉडल बनाया जाता है। और मीडिया को कैसे यूज करना है, न्यूज़पेपर में कैसे देना है, या जो अलग अलग मीडिया है, फेसबुक वगैरह या टेलीविजन, किस तरह की न्यूज दी जाए कि उस नेशनल पार्टी को फायदा हो। तो ये ऐसे मॉडल भी बनाए जाते हैं। एज लाइक सेकंड 5 ईयर प्लान में एक मॉडल बना जो महालोबनिस और फ्रीडमैन मॉडल मॉडल कहा जाता है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हेराल्ड डोमार का मॉडल यूज किया गया था। ओके, तो प्रायोरिटी या मोटो क्या था सेकंड 5 ईयर प्लान का? टू डेवलपमेंट ऑफ बेसिक एंड हेवी इंडस्ट्रीज। यहाँ पर फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर या प्राइमरी सेक्टर
सेकंड 5 ईयर प्लान में सेकेंडरी सेक्टर को इंपॉर्टेंस दिया था टू डेवलप बेसिक एंड हेवी इंडस्ट्रीज। बेसिक इंडस्ट्रीज में हम देखते हैं यहाँ पर कॉटन इंडस्ट्रीज आती है, तो इंडिया में कॉटन इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट हुई। कौसाजी डाबर इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कॉटन इंडस्ट्रीज। 1854 में कॉटन इंडस्ट्रीज मुंबई में हमारे, तब उसका नाम बॉम्बे था, वहां पर स्टार्ट हुई थी। और सेकंड 5 ईयर प्लान में बेसिक जो इंडस्ट्रीज थी, कॉटन इंडस्ट्रीज या पेपर इंडस्ट्रीज, जो सहारनपुर में एक फैक्ट्री बनी, ऑयल इंडस्ट्रीज दिग्बोई में वगैरह जो फैक्ट्री वहां पर स्टैब्लिश हुई, तो ये बेसिक इंडस्ट्रीज वो थी। और हेवी इंडस्ट्रीज में खास करके आते हैं मिनरल से या मेटल से रिलेटेड स्टील इंडस्ट्रीज या माइका इंडस्ट्रीज, ये सारी इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट करना, ये सेकंड 5 ईयर प्लान का मोटो था। इन शॉर्ट, टू डेवलप बेसिक एंड हेवी इंडस्ट्रीज इज द प्रायोरिटी ऑफ सेकंड 5 ईयर प्लान। नाउ वी हैव फोकस ऑन द ऑब्जेक्टिव। इसका ऑब्जेक्टिव, दो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। सेकंड ऑब्जेक्टिव फर्स्ट डिस्कशन करेंगे, टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पर रोजगार की जो संधि है, अपॉर्चुनिटीज है, वो क्रिएट करनी है। एम्प्लॉयमेंट, रोजगार देना है लोगों को, बिकॉज आफ्टर इंडिपेंडेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। और वो अगर करेंगे, ऑब्जेक्टिव अगर वो सफल होगा, एम्प्लॉयमेंट अगर देंगे, तो सेकंड ऑब्जेक्टिव भी यहाँ पर अचीव हो जाएगा। टू इंक्रीज नेशनल इनकम। नेशनल इनकम हाउ मेनी परसेंटेज? 25% नेशनल इनकम इंक्रीज करना है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव था सेकंड 5 ईयर प्लान में। आप देखेंगे प्रायोरिटी और ऑब्जेक्टिव एक दूसरे को वहां पर सपोर्ट करते हैं। प्रायोरिटी को कंप्लीट करने के लिए सब ऑब्जेक्टिव है इसे यहाँ पर। तो टू इंक्रीज नेशनल इनकम 25%। नेशनल इनकम के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। पर कैपिटा जो होता है, उससे नेशनल इनकम निकलता है। पॉपुलेशन डिवाइडेड पर कैपिटा इज इक्वल टू नेशनल इनकम। तो पर कैपिटा क्या होता है कि पर कैपिटा, उसको मराठी में हम कहते हैं दर डोही, प्रत्येक डोका किती कमवतं, दैट्स मीन पर कैपिटा। और जो कमाने वाले हैं उसका एज ग्रुप हम देखते हैं, जो 18 के ऊपर से और नियर बाय हम देखते हैं कि यहाँ पर 70-80 तक जो ग्रुप है, वो वहां पर कर पर कैपिटा वहां पर कंसिडर किया जाता है। और वो टोटल पॉपुलेशन है, उसको डिवाइड करके नेशनल इनकम निकलता है किसी भी कंट्री का। तो नेशनल इनकम 25% वहां पर इंक्रीज करना है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेकंड 5 ईयर प्लान। तो ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने के लिए, प्रायोरिटी कंप्लीट के लिए कौन कौन से प्रोजेक्ट्स इंडिया में लॉन्च हुए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम देखेंगे दुर्गापुर। दुर्गापुर में दुर्गापुर स्टील इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश की गई। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में, आप देखिए दुर्गा पूजा वहां के फेमस है, तो दुर्गापुर का नाम आएगा तो वेस्ट बंगाल आपके दिमाग में आना चाहिए। और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए ब्रिटेन ने हेल्प की थी हमें, दुर्गापुर का प्लान। सेकंड प्रोजेक्ट बना भिलाई में, इसका नाम था भिलाई स्टील प्लांट, वो छत्तीसगढ़ में है। और इसको कंप्लीट करने के लिए हेल्प की थी हमें रशिया ने। नेक्स्ट वन, रूरकेला स्टील प्लांट, ये उड़ीसा में एस्टेब्लिश हुआ था और इसके लिए हेल्प की थी जर्मनी ने। अभी ये अदर जो कंट्री है, ये इंडिया की डेवलपमेंट के लिए क्यों हेल्प करेंगे? तो इसके रिलेटेड भी थोड़ी सी थिंकिंग होनी चाहिए। तो आप दिमाग में रखिए कि हमें पता है ये जो पीरियड है 1956 या 51, ये जो पीरियड है, ये पीरियड है आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर। और आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर हमें पता है दो ग्रुप क्रिएट हुए थे। फर्स्ट ग्रुप जो था, एक अमेरिकन ग्रुप था और सेकंड ग्रुप रशियन ग्रुप था। और उनके बीच में आफ्टर एस्टेब्लिश आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर, दैट्स मीन द 1945 के बाद एक वॉर स्टार्ट होता है। उस वॉर को हम कहते हैं कोल्ड वॉर। और कोल्ड वॉर में ग्रुपिंग स्टार्ट हो जाती है टू कंट्रीज में, ओवरऑल वर्ल्ड में ग्रुपिंग स्टार्ट हो जाती है। और वो ग्रुपिंग जो है वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है मोस्ट ऑफ। और ये ग्रुपिंग के लिए इंडिया को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि ये डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पर मिनरल्स बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इस कारण इस कंट्री को अट्रैक्ट करने के लिए डिफरेंट कंट्री वहां पर उस कंट्री वहां पर इन्वेस्टमेंट करती है। जैसे इंडिया नेपाल में कभी यहाँ पर इन्वेस्ट करता है, या हम पीओके के एरिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं, या अलग अलग कंट्रीज के लिए हम हेल्प करते हैं। तो उसका यही रीजन होता है कि उससे भी हमें भी बेनिफिट मिले।
तो ये कंट्री वहां पर हेल्प कर रही थी, जहाँ पर जर्मनी दिखेगी, रशिया दिखेगी, ब्रिटेन दिखेगी, कहीं पर यूएसए आपको दिखेगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है दुर्गापुर रिलेटेड। किसने हेल्प की थी? तो ब्रिटेन ने, भिलाई में रशिया ने हेल्प की थी, और रूरकेला स्टील प्लांट में जर्मनी ने वहां पर हेल्प की थी। जो 3 प्रोजेक्ट्स बने इसमें, इम्पोर्टेंस प्रोग्राम भी कुछ लॉन्च हुए, बट ज्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंस नहीं प्रोग्राम्स, यहाँ पर प्रोजेक्ट्स इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टाटा स्टील भी यहाँ पर स्टेब्लिश हुआ, वो बाद में स्टेब्लिश हुआ, मगर ये 3 जो प्रोजेक्ट्स है, ये इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स है जो यहाँ पर स्टेब्लिश हो जाते हैं, दुर्गापुर, भिलाई और रूरकेला। ये 3 प्रोजेक्ट्स इंडिया में स्टैब्लिश किए जाते हैं बिटवीन द सेकंड 5 ईयर प्लान। और कंपैरिजनली हम देखेंगे तो नेशनल इनकम ये उस टाइम में अगर देखेंगे तो नेशनल इनकम 10% था, 10.5%, और वो इंक्रीज हुआ, अच्छा खासा इंक्रीज हुआ, नियर बाय 21-22%। और ओवरऑल 3.6 ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान का अचीवमेंट था। तो सेकंड 5 ईयर प्लान का अचीवमेंट आप देखेंगे तो 4.1, दैट्स मीन्स सेकंड 5 ईयर प्लान आल्सो सक्सेसफुल रहा। ये ध्यान में रखेंगे, ये प्लान भी बहुत सक्सेसफुल रहा, बिकॉज जो मोटो था इंडस्ट्री डेवलपमेंट का, उस मोटो से रिलेटेड वहां पर वर्किंग हुई, प्रोजेक्ट्स एस्टेब्लिश हुआ। आप देखेंगे प्रोग्राम्स ज्यादा यहाँ पर क्यों नहीं है? बिकॉज यहाँ पर मोटो इंडस्ट्री डेवलपमेंट का है, तो प्रोजेक्ट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगी, स्टील इंडस्ट्रीज लगी, कॉटन इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश हुई आफ्टर सेकंड 5 ईयर प्लान। इंडिया में शुगर इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट हुई। हमें पता है हमारे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा शुगर इंडस्ट्रीज है, यूपी में है, तमिलनाडु में, ये 3 कंट्री लीड करती है शुगर इंडस्ट्रीज में। कॉटन इंडस्ट्रीज की अगर बात करेंगे तो महाराष्ट्र भी वहां पर लीड है। गुजरात की बात करेंगे, सूरत वगैरह, ये भी वहां पर, कोयम्बतूर वगैरह, इसकी बात अगर हम करेंगे तो ये यहाँ पर कॉटन इंडस्ट्रीज भी बाद में डेवलप हुई। या स्टील इंडस्ट्रीज के बारे में हम झारखंड वगैरह इसको हम देखेंगे तो वहां पर वो डेवलपमेंट हुई। तो ओवरऑल सेकंड 5 ईयर प्लान वहां पर अचीवमेंट अगर देखेंगे तो सक्सेस रहा, 4.1% उसका अचीवमेंट रहा। ये हम यहाँ पर देखते हैं। नाउ वी हैव फोकस ऑन द थर्ड 5 ईयर प्लान। तो थर्ड 5 ईयर प्लान यहाँ पर आया सेकंड 5 ईयर प्लान के बाद में। फर्स्ट एंड सेकंड 5 ईयर प्लान जितने सक्सेसफुल रहे, उतने ही अनसक्सेस रहा थर्ड 5 ईयर प्लान, ये ध्यान में रखेंगे। उसका ड्यूरेशन आता है थर्ड 5 ईयर प्लान का। जब सेकंड 5 ईयर प्लान फिनिश हुआ था 31 मार्च 1961 में, उसके बाद 1 अप्रैल 1961 में थर्ड 5 ईयर प्लान लॉन्च होता है। उसका ड्यूरेशन आएगा 1961 टू 1966। और इस प्लान में 2 चेयरमैन आपको मिलेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल पंडित नेहरू जी एंड सेकंड वन लाल बहादुर शास्त्री। तो ये अनसक्सेस भी क्यों रहा? तो बिकॉज इससे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे। तो 1961 से लेकर 1964 में पंडित नेहरू जी इसके चेयरमैन रहे। 1964 में हमें पता है पंडित नेहरू जी की डेथ हो जाती है। और 1964 टू 1965 लाल बहादुर शास्त्री इस प्लान के चेयरमैन रहे, जो बाद में प्राइम मिनिस्टर बने और ऑटोमेटिकली यहाँ पर इसके चेयरमैन बन जाते। कौन सा मॉडल यूज हुआ था? तो सुकुमार चक्रवर्ती और प्रोफेसर सैंडी का मॉडल यहाँ पर यूज हुआ था। और इस प्लान में इन्होंने इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की बात की थी। और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में इन्होंने दोनों एरियाज को, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को इम्पोर्टेंस दिया था। इसका मोटो ही वही था, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एंड पैरेलली प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर डेवलपमेंट, इस तरह का इसका मोटो था। दैट्स मीन फर्स्ट 5 ईयर प्लान एंड सेकंड 5 ईयर प्लान का कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा थर्ड 5 ईयर प्लान में, जिसका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट या सफिशिएंट फूड की बात की थी, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट की बात की थी। सफिशिएंट फूड दैट्स मीन प्राइमरी सेक्टर डेवलपमेंट, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट दैट्स मीन सेकंड 5 ईयर प्लान का जो मोटो था वो इसमें आपको दिखेगा। ऑब्जेक्टिव यहाँ पर टू इंक्रीज नेशनल इनकम 5%, नेशनल इनकम 5% यहाँ पर इंक्रीज करना है। जो भी था उस टाइम में उसमें 5% यहाँ पर इंक्रीज करना है।
तो आप देखेंगे यहाँ पर मिक्स इकोनॉमी की बात की थी, दोनों मिक्स इकोनॉमी डेवलपमेंट की या इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की बात की थी। तो इसके लिए प्रयास हुए। अभी ये जो प्लान है वो दो पार्ट में हमें डिस्कस करना चाहिए, या दो पार्ट में हमें समझना चाहिए। पॉजिटिव थिंग रिलेटेड थर्ड 5 ईयर प्लान एंड नेगेटिव थिंग टू रिलेटेड थर्ड 5 ईयर प्लान। तो फर्स्ट ऑफ ऑल निगेटिव चीज थिंकिंग करते हैं, बाद में मैं आपको पॉजिटिव बताता हूँ। निगेटिव इफेक्ट क्या हुए, तो हमें पता है 1962 में इंडो चाइना वार हुआ। ये सक्सेस क्यों नहीं हुआ थर्ड 5 ईयर प्लान? तो जब से ये स्टार्ट हुआ 1961 में, तो आफ्टर 1 ईयर इंडो चाइना वार हुआ 1962 में। हमें पता है, इससे रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा जब ऑफलाइन होगा, पूरा डिटेल में वार से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे हम। बट 1962 में इंडो चाइना वार, तो यहाँ पर जो कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था इंडिया ओवरऑल वर्ल्ड में, रशिया और अमेरिका के बीच में, यूएसए के बीच में, उसमें पंडित नेहरू जी ने एक अलग सी एक कम्युनिटी या अलग सी एक ग्रुपिंग बनाया था। उसको कहा जाता है नॉन अलिजमेंट मूवमेंट, नाम कहा जाता है उसको नॉन अलिजमेंट मूवमेंट। दैट्स मीन्स हम ना रशिया के साथ है ना हम अमेरिका के साथ है। और ओवरऑल इसका इतना अच्छा रिस्पांस था, बहुत सारी कंट्री इंडिया को सपोर्ट कर रही थी, और इंडिया का नाम आगे बढ़ रहा था कंपैरिजनली यहाँ पर यूएसए और रशिया के। तो और ये एक चीज थी। और एक दलाई लामा का एक इशू हुआ था, जो बुद्धिस्ट थे वहां पर कम्युनिज्म, कंफ्यूशियस की एक वहां पर थिंकिंग थी चाइना में। माओ सेतुंग या चोंग काई शेक, ये जो नाम है चाइनीज, वहां के जो लीडर थे चोंग काई शेक और माओ सेतुंग, उनके अगेंस्ट में उन्होंने वहां पर दलाई लामा को हमने सपोर्ट किया था। ऐसे बहुत सारे रीजन देकर चाइना ने इंडिया पे अटैक किया था। बॉर्डर भी इशू थे, मैकमोहन लाइन से रिलेटेड, ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव थे, बहुत सारे रीजन थे 1962 वॉर के, वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पर ध्यान में रखेंगे 1962 का वॉर हुआ था, पंडित नेहरू ने नारा भी दिया था हिंदू चीनी भाई भाई, बहुत अच्छे रिलेशन थे हमारे। बट ये सारे रीजन हुए, इसलिए चाइना ने इंडिया पे अटैक कर दिया 1962 में। वहां पर हमें हार मिली थी। 1964 में पंडित नेहरू जी की डेथ हो जाती है, और किसी प्राइम मिनिस्टर की डेथ होना उस कंट्री का बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसीलिए भी थर्ड 5 ईयर प्लान के ऑब्जेक्टिव पे इसने इफेक्ट किया। उसके बाद हम देखते हैं 1965 में इंडो पाक वॉर हुआ। पाक को लगा कि चाइना ने इंडिया को पिछाड़ दिया है, हरा दिया है, तो हम भी अटैक करेंगे तो हमें बेनिफिट मिलेगा, मगर उनको इंडिया से हार मिली। 1965 का वॉर हुआ। उसके बाद 1965 में डेथ हुई हमारे शास्त्री जी की, लाल बहादुर शास्त्री की। दो ताशकंद पैक्ट हुआ था आफ्टर 1965 वॉर, जो इंडिया और पाकिस्तान का सेकंड वॉर था। हमें पता है 1947 में भी एक वॉर हुआ था, 1965 में सेकंड वॉर होता है बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान। उसके बाद 1971 में एक वॉर हुआ था रिलेटेड टू बांग्लादेश 1971 में। और हमें पता है 1999 में कारगिल वॉर भी हुआ था, उसको हम शॉर्ट वॉर कहते हैं। तो ये जो वॉर है, ये चारों चीजें 1962, 1964, 1965, 1965, ये इफेक्ट किया इसने इंडियन इकोनॉमी पे, या जो हमारे पूरी प्लानिंग थी वो प्लानिंग यहाँ पर सक्सेस नहीं रही। ये सारे निगेटिव प्लान रहे। और कोई भी ऐसा कहा जाता है, या जो डिफेंस के स्टडी करते हैं या डिफेंस के जो अभ्यासक है, वो कहते हैं कि कोई भी वॉर किसी भी कंट्री को नियर बाय 10 to 15 years बैक लेके जाता है बाय इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। वॉर में बहुत सारा खर्च होता है, वहां पर मनुष्य हानि तो होती ही है, बट इकोनॉमिकल भी बहुत सारा लॉस होता है। तो इसलिए ये कहा गया कि कोई भी वॉर जो होता है वो किसी भी कंट्री को बैक लेके आता है। तो इसलिए थर्ड 5 ईयर प्लान अनसक्सेस रहा। ये रहे पॉइंट्स ऑफ रिलेटेड अनसक्सेस। नाउ वी हैव फोकस ऑन द सक्सेस या पॉजिटिव थिंग। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉजिटिव थिंग थी, जो मोटो था हमारा सफिशिएंट फूड। इसके लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में स्टार्ट हो गया। ग्रीन रिवॉल्यूशन दैट्स मीन टू इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन इन इंडिया, ग्रीन रिवॉल्यूशन। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंस नाम आपको ध्यान में रखना है, एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन इज नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन। एम.एस. स्वामीनाथन ने अलग अलग वहां पर सीड डेवलप किए अपने लैब में,
और इस कारण वेट हो या गेहूं जिसको कहा जाता है या राइस हो, इसके प्रोडक्शन ओवरऑल बहुत बड़ा इंडिया में, और हम सफिशिएंट हो गए फूड में आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन। ये सबसे पॉजिटिव थिंक है रिलेटेड टू थर्ड 5 ईयर प्लान। तो ग्रीन रेवोल्यूशन को हम ध्यान में रखेंगे। यस स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन इज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। ये ओवरऑल वर्ड में बोलगार्ड को या नॉर्मल बोलगार्ड को हम फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं, मगर इंडिया के बारे में ये स्वामीनाथन का नाम लेंगे। और महाराष्ट्र के बारे में, अगर महाराष्ट्र में जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुआ है, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ है, वहां पर वसंतराव नाइक जी का नाम आता है। ये ध्यान में रखेंगे, ये 3 पर्सन को रिलेटेड टू ग्रीन रिवॉल्यूशन। गॉट इट क्लास? तो ये थर्ड 5 ईयर प्लान था। मुझे लगता है एक कुछ टाइम बाकी है, तो हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, तो सेकंड एंड थर्ड 5 ईयर प्लान से रिलेटेड। ओके, उसके बाद प्लान हॉलीडे आया। प्लान हॉलीडे क्यों आया? बिकॉज फेल्यूर ऑफ द थर्ड 5 ईयर प्लान। फेल्यूर क्यों हुआ? वो 4 रीजन मैंने आपको बताए। पंडित जी और शास्त्री जी की डेथ, चाइना और पाकिस्तान का वॉर, वहां पर पैसे हमें ट्रांसफर, जो बजट होता है भी किसी भी कंट्री का, आज हम अगर हम करेंगे देखेंगे, ये थोड़ा सा अलग सब्जेक्ट हो जाएगा मगर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। बजट की अगर बात करेंगे तो बजट लॉन्च होता है, आपको पता है, एक रेलवे बजट का लॉन्च होता है, ओवरऑल कंट्री का बजट लॉन्च होता है। तो पहले ही डिसाइड किया जाता है कि किस एरियाज में इंडिया वेस्ट करेगी, इंडिया वहां पर किस एरियाज में पैसे देगी और किस प्रोजेक्ट्स को वहां पर डेवलप करेगी। अभी रिसेंटली हमें पता है कि पुणे में यहाँ पर छत्रपति शिवाजी शिव सृष्टि बन रही है, उसके लिए प्रोजेक्ट्स यहाँ पर दिए गए या वहां पर बहुत सारे बजट दिया गया। तो बजट पहले यहाँ पर लॉन्च होता है। और थर्ड 5 ईयर प्लान में क्या हुआ कि जो प्राइमरी सेक्टर में या सेकेंडरी सेक्टर में जो बजट था, वो ट्रांसफर किया किस एरियाज में? डिफेंस एरियाज में, बिकॉज वहां पर 2 वॉर हमें लड़ने पड़े। तो यह ध्यान में रखेंगे। तो क्या किया कि ब्रेक दिया प्लान को और प्लान हॉलीडे लॉन्च किया 3 ईयर का, 1966 टू 1969। और वहां पर 1 ईयर एनुअल प्लान किया गया, उसको प्लान हॉलीडे कहा जाता है। उस प्लान में क्या किया कि इक्वली प्रायोरिटी दी गई एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री सेक्टर के लिए, दोनों भी सेक्टर के लिए, ये ध्यान में रखेंगे। उसके बाद 4 5 ईयर प्लान लॉन्च हो जाता है। कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में 4th और 5th 5 ईयर प्लान डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक हमारा फिनिश हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। मगर अभी हम अभी के लिए कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। थोड़ा रिवीजन भी होना जरूरी है, तो जो हमने अभी अभी डिस्कस किया उसका डिस्कशन करते हैं, या कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर। अभी अभी व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ थर्ड 5 ईयर प्लान? तो थर्ड 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन क्या होता है? 1961 टू 1966, ये ड्यूरेशन है थर्ड 5 ईयर प्लान का। ये हाईलाइट्स है इस लेक्चर के, आप ध्यान में रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कशन कर रहे हैं। What was the main objective of third 5 ईयर प्लान? उसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे थर्ड 5 ईयर प्लान के? तो मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर सेल्फ रिलायंस, डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, जो सी आंसर आएगा वो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान का है, इंडस्ट्री डेवलपमेंट सेकंड 5 ईयर प्लान का है, तो थर्ड 5 ईयर प्लान का है सेल्फ रिलायंस, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री डेवलपमेंट। नेक्स्ट वन यहाँ पर देखेंगे, अंडर विच 5 ईयर प्लान वॉज द ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्टेड? तो कौन सा आंसर आएगा इसमें क्लास? थर्ड 5 ईयर प्लान। थर्ड 5 ईयर। थर्ड 5 ईयर प्लान इसका आंसर आएगा। और यस स्वामीनाथन का नाम वहां पर ध्यान, वेरी गुड, आप अच्छे से यहाँ पर ध्यान दे रहे हो। ये देखिए, इन विच 5 ईयर प्लान वॉज पंचायत इलेक्शन स्टार्टेड इन डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट लेवल? तो पंचायत राज का ये जो स्टार्ट हुआ था, ये कब स्टार्ट हुआ था? तो ये ध्यान में रखेंगे, 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी बनी थी। और 1957 कब आएगा? तो ये सेकंड 5 ईयर प्लान के बीच में ही आएगा। तो एक इम्पोर्टेंट प्रोग्राम हम इसमें देखेंगे। पंचायत राज हम पढ़ेंगे,
डेफिनेटली हमारे प्रोग्राम में है, मेरे प्लानिंग में पंचायत राज का भी एक लेक्चर होगा। मगर 1957 में पंचायत राज बलवंत राय मेहता कमेटी बनी और आफ्टर दैट वहां पर पंचायत राज राजस्थान में फर्स्ट पंचायत राज फर्स्ट ग्राम पंचायत इस्टेब्लिश हो जाती है। तो इसका आंसर आएगा सेकंड 5 ईयर प्लान। ओके, इस तरह भी क्वेश्चन आते हैं, ध्यान में रखिए, इसलिए मैंने क्वेश्चनिंग दी है। सेकंड 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट यहाँ पर कंसिडर करेंगे विच 5 ईयर प्लान कंसिडर अनसक्सेसफुल कौन सा रहा, तो थर्ड 5 ईयर प्लान। प्लान हॉलीडे कौन से प्लान के बाद स्टार्ट हुआ, थर्ड 5 ईयर प्लान के। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। ओके, प्लान हॉलीडे कब लॉन्च हुआ, कब डिक्लेयर हुआ, आफ्टर फेल्यूर थर्ड 5 ईयर प्लान। उसके बाद फोर्थ 5 ईयर प्लान हमें डिस्कस करना बाकी है, वो हम डिस्कस करेंगे। ग्रोथ रेट सबसे अच्छा, इन विच 5 ईयर प्लान वॉज इंडियाज एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट इज हाइस्ट, सबसे ज्यादा हाईएस्ट ग्रोथ रेट किस प्लान के बाद रही है। तो उसका आंसर क्या आएगा क्लास, उसका आंसर आएगा फोर्थ 5 ईयर प्लान। बिकॉज हमने अभी अभी डिस्कस किया थर्ड 5 ईयर प्लान में ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ है और उसका इफेक्ट कहाँ दिखेगा, फोर्थ 5 ईयर प्लान में दिखेगा, जिसका ड्यूरेशन है 1969 टू 1974। वहां पर सबसे अच्छा ग्रोथ रेट दिखेगा आपको एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में या ग्रीन रिवॉल्यूशन में। ये हमने डिस्कस किया। सेकंड 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव था इंडस्ट्री डेवलपमेंट। फोर्थ 5 ईयर हमें डिस्कस करना है, ये भी हमने डिस्कस किया। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, इन विच 5 ईयर प्लान वाज इसरो इस्टेब्लिश। इसरो, जैसे हमने आईआईटी सेंटर की बात की थी, एज लाइक इसरो भी इस्टेब्लिश हुआ था किस 5 ईयर प्लान के अंडर। तो ये जो है ये फोर्थ 5 ईयर प्लान के अंडर इसरो इस्टेब्लिश हुआ था। इसरो आपको पता है क्या है, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और कहां पर इस्टेब्लिश हुआ था, बेंगलुरु में। बेंगलोर कहते थे, आज हम उसको बेंगलुरु कहते हैं। और हमें पता है 1969 में इसरो यहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ था इंडिया में, बेंगलुरु में। ये ध्यान में रखेंगे, बेंगलुरु में इस्टेब्लिश हुआ था। और इसके फाउंडर माने जाते हैं ग्रेट साइंटिस्ट डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो ये ध्यान में रखेंगे, इसरो इस्टेब्लिश हुआ था बिटवीन फोर्थ 5 ईयर प्लान। फोर्थ 5 ईयर प्लान के अंडर यहाँ पर इसरो इस्टेब्लिश हुआ था, ये ध्यान में रखेंगे, वो आगे आने वाला है। गरीबी हटाओ वगैरह ये सारी चीजें हम डिस्कशन करेंगे बाद में। हम आते हैं अभी हमारे मेन इसमें। तो क्लास इसमें हमने सेकंड 5 ईयर प्लान, उसकी